اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں خوش بھی ہوں گے، آباد بھی ہوں گے، خوشحال بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی ضرور قبول فرما رہے ہیں۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سے مخاطب ہوں، اور اسی نام سے اپنے فیس بک کے پیج سے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج والا جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں نا، پڑھنے والا، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن اس کی اتنی زیادہ آئی ہے نا فرمائش، لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو پرانے سن رہے ہیں ان سے سنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے بتایا تھا، ایک دفعہ آپ اس کو دوبارہ ہمیں بتائیں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ یار آپ سن لیں یہ لکھ کے، یا لطیف ہو، مسئلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ دوبارہ اس کو ڈھونڈے گا کون، آپ دوبارہ اس کو ہمیں بتا دیں۔ تو امید ہے کہ سارے لوگ غور سے سنیں گے اس بار، اور اس کو بہت سنبھال کے رکھیں گے، اور اس کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے، اور پھر اس کے فائدے دیکھیں گے، اللہ کی رحمت دیکھیں گے، اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو سب سے افضل حمد اور درود شریف دونوں ملے ہوئے اکٹھے بتاتی ہوں، کیونکہ علامہ ابن المشتہر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی تعریف کرے جو سب سے زیادہ افضل ہو، جو اس کی مخلوق میں کسی نے ابھی تک نہ کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ اور مقربین، آسمان والوں اور زمین والوں میں سے بھی افضل ہو، تو اس طرح اس کو یہ چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جو ان سے سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہو، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی سے ایسی دعا مانگے جو ان سب سے افضل ہو، جو کسی نے اب تک مانگی ہو، تو وہ یہ پڑھا کرے۔ آج میں اسپیشل یہی پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں، اور آئندہ یہ درود شریف اور اللہ کی تعریف ملا کے اسی طرح پڑھیں، جو ملائکہ، مقربین، اولین آخرین میں سب سے افضل ترین طریقے کی عبادت ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں، تاکہ وہ بھی ہمیں یاد کرے اور اپنے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے ہمیں یاد کرے۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی اپنے چار لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے نا، یاد کرتا ہے، تو میں فرشتوں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ میں فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد دن کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف، وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سب سے افضل، مقربین سے افضل جو انہوں نے کی ہوں، ملائکہ سے بھی افضل۔ یہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں پڑھیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر میں پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اور اس کے بعد پڑھ لیا کریں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد،
कमा यंबगी लिजलाली वजही का व अजीम सुल्तानी का। तो फरिश्ते भी मुश्किल में पड़ गए और समझ ना आए कि वो इसे किस तरह लिखें। तो वो आसमान की तरफ चढ़े और अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, तेरे बंदे ने एक ऐसा जुमला कहा है कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम इसके सवाब को किस तरह लिखें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कलमे को इसी तरह से लिखो जिस तरह मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मुझे याद किया, यहाँ तक कि मेरा बंदा, अल्लाह ने कहा मुझसे आन मिले, मेरा बंदा मुझसे आन मिले तो इसे इसका इनाम दूंगा मैं खुद ही। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। फरिश्ते जो हैं, अगर किसी ने खाना काबा में गया तो उसने ये पढ़ दी अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का घर देख, तो फरिश्तों ने कहा भाई तू पिछले साल पढ़ के गया था तो अभी तक हम उसका अजर लिख रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, अब तुमने फिर आके पढ़ दी। तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हम बता हम इसका अजर कैसे लिखें, तो क्यों ना हम सब पढ़ें, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। और एक नबी करीम की जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु, या अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ल्ला इतनी जज़ा दे जिसके कि वो अहल है। अब आप खुद ही सोच लें कि हमारे प्यारे नबी कितने के अहल है, कोई इनसे बढ़ के अहल है? या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का। ऐ अल्लाह मैं तेरी इतनी तारीफ़ करना चाहता हूँ जितना तेरा जलाल वाला जमाल वाला चेहरा उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। वह अजीम सुल्तान का, और इतनी तारीफ़ करना चाहता हूँ जितना बड़ा तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, सारे जहानों का मालिक। तो ये तोहफ़ा है, आपने याद रखना है, इन 3 चीज़ों को भूलना नहीं है, याद रखना। और इसका मेरे लिए भी दुआ करना जिसने आप लोगों को ये बताया है, और अल्लाह ताला आप सब से और मुझसे इसको कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ख़ास अपना रहम करे। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे अपना वो निकाल के रखा हुआ था, हमेशा ऐसे होता है कि जब किसी एक चीज़ को आप अच्छी तरह से समझाने लगे तो दूसरी आपसे गुम जाती है, पता नहीं क्या, ये भी कोई शैतान ही तंग करता है पता। मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने अपनी डायरी में आपके लिए निशान लगा के रखा था, मैं हैरतज़दा हूँ कि वो कहाँ पे हमसे खो गया। हाँ मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैं बताती हूँ, इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़नी है आपने, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने पढ़ी हुई है और अल्लाह ने मेरे ऐसे काम किए हुए हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती, अल्लाह ही बता सकता है, मैं कैसे उसका शुक्र अदा कर सकती हूँ। आपने वितर नहीं पढ़ने, वितर से पहले 2 नफल सलात हाजत के आपने पढ़ने हैं, वितर छोड़ देने, वितर इसको ख़त्म करने के बाद पढ़ने। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये एक बंदा नहीं पढ़ सकता, इसमें अगर मैं ऐसे बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 16,641 बार आपने या लतीफ़ो पढ़ना है। मुझे तो इसलिए ज़बानी पता है ना कि मैंने बहुत दफ़ा ये पढ़ा हुआ। 16,641 बार आपने या लतीफ़ो पढ़ना है। कहने को बंदा कहता 16,641 तो मैं ऐਵੇਂ ही पढ़ लूँगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ उसमें 7 बंदे हो जाए या 9 बंदे हो जाए या 11 बंदे हो जाए, 7 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं पढ़ सकते, 3 बंदों के लिए भी मुश्किल। आपने इस तरह पढ़ना है कि आपने पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है, सलात हाजत के नफल पढ़ने के बाद अपनी नीयत दिल में रखनी है
नीयत क्या है, आप क्यों ये पढ़ने लगे हैं। अल्लाह का सबसे प्यारा नाम या लतीफ़, ए बारीक भी, ए सब अंदर की इची बिची टिची जानने वाले, जो कुछ हम छुपाते हैं और जो हम ज़ाहिर करते हैं उससे तो नहीं छुपा सकते ना। तो आपने इस तरह पढ़ना है कि आपकी तस्बीह जो है वो 129 नहीं, ये मुश्किल है आपकी, ये तो एक बंदे के पढ़ने के लिए है ना। आपने ऐसे करना है कि 129 बादाम ले लें, लोबिया के दाने ले लें, बहुत छोटे चने के दाने ले लें, ज़रा मोटे वाले चने। तो जितने बंदे हैं उनमें आप डिवाइड कर दें कि कितने कितने आते हैं। 129 को आपने डिवाइड करना है सारे लोगों के सामने। 129 को आपने जितने लोग बैठे हैं 7, 9 या 11 उन पे डिवाइड करना है। तो ऐसे करें, उनके सामने जो कपड़ा, तो आप चादर तो बिछाएंगे क्योंकि आप बड़े अदब से पढ़ेंगे, तो आप ऐसे उनको ज़रा फासले पे उनको रखें ताकि आपने उनको हाथ न लगाए। उसके बाद आप पेंसिल या स्टिक, जो लेडीज़ बड़ी माहिर है किचन की, तो उनके पास स्टिक होती है ना, वो टिक्के बनाने वाली और वो पता नहीं कबाब बनाने वाली पतली जो मिलती हैं, पतली पतली मिलती है ना, वो क्या स्टिक कहते हैं। मैंने चूँकि मेरा किचन का काम नहीं है इसलिए मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन मुझे पता है वो उस पर वो स्टिक्स होती हैं जिस पे वो बनाती हैं चीज़ें, लकड़ी की पतली पतली से। आप वो स्टिक ले लें, पेंसिल ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपने जब आप पढ़ें तो बस आप दूर से उस हर दाने के ऊपर करें। अगर आपकी गिनती ठीक है तो एक ही दिन में आपका काम हो जाए, गिनती ख़राब ना होने पाए, ना कोई ज़्यादा पढ़े ना कोई कम पढ़े, और ना ऐसे बंदे को अपने अंदर बिठाएं जो तेज़ तेज़ पढ़े, जिसके पीछे पुलिस लगी हो कि बस जल्दी जल्दी यार, और फिर बैठ के हंसने लग जाए। देख, ऐसे बंदे को नहीं बिठाएं, जो बड़ा अदब से पढ़े, या लतीफ़ हो 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 या लतीफ़। जब उसके पूरे हो जाए तो वो सुकून से बैठ जाए, इसी को दिल में पड़े या अल्लाह का कोई और चीज़ याद रखे या अदब से एहतराम से बैठ जाए, इंतज़ार करे कि जब सारे पढ़ लें, देखे कि जब ख़त्म हो जाए तो एक बंदे ने वो आयत पढ़नी है जो कि मैं बताऊँ, वो एक आयत एक ही बंदे ने पढ़नी, फिर वो एक लिख ले कि एक हो। 129 दफ़ा या लतीफ़ हो और एक दफ़ा वो आयत, वो 4 आयतें हैं। आपको एक काम है तो आप सिर्फ एक भी पढ़ सकते हैं, आप उसमें से 2 भी पढ़ सकते हैं, आप 3 भी पढ़ सकते हैं, आप चारों भी पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ एक भी पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या काम है अल्लाह से। अब मैं आपको सारा समझा दूं, और इस तरह 129 मल्टीप्लाइड बाय 129 इज इक्वल टू 16,164, 16,641 बन जाएगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अलम नशरा पढ़नी है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 दफ़ा अलम नशरा पढ़नी है, क्योंकि अलम नशरा मुश्किलों को खोलने के लिए हम पढ़ते हैं, मुश्किलें उससे आसान होती हैं, परेशानियाँ उससे दूर होती हैं। तो आपने 11 दफ़ा उसको पढ़ के फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है दोबारा, और फिर आपने शुरू करना है या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो, जो कि 129 बार आपने बांट के सबके सामने चीज़ें रखी हुई हैं जितने लोग बैठे हैं। इससे ऊपर नहीं पढ़ना, इससे नीचे नहीं पढ़ना। और आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने मकसद के दुआ मांगनी है। बहुत अजीब और सरीउल तासीर अमल है ये, मैं गवाह हूँ। मैंने पढ़ा और मेरा एक दिन में भी काम हो गया, 2-3 दिन पढ़ने से भी हो गया, डिफरेंट दफ़ा, एक दफ़ा में भी हो गया। बिल्कुल, मैंने हमेशा इसको पढ़ा, अपने बच्चों को साथ बिठा लिया, मियाँ को बिठा लिया, कोई मेरे काम वाले, कोई बच्ची है बच्चा है जो भी, उसको किसी एक आध को बीच में जमा कर लिया, यूँ पढ़ लिया रात के। अच्छा, अब ये है कि 129 दाने जो हैं आपने डिवाइड कर लिए। एक बंदा नहीं पढ़ सकता कि मैं कहूँ एक तस्बीह 129 दानों वाली बना लें, वो नहीं आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि मुझे तजर्बा है। मैं ये कहूँगी तो फिर आप सारा दिन लगे रहेंगे, हत्ता कि थक के बोर हो जाएंगे, आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा।
पहली आयत आपने पढ़नी है, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसको नहीं पा सकती, लेकिन उसकी निगाह में हम सब हैं, सारा जहान है, ये इसका मैन है। तो मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा था तो मैंने ये आयत पढ़ी थी, जिसने मुझे बताया था ना, वो मेरे कारीगर थे मुल्तान डीजी खान से, जो मेरे लिए काम करवा के लाते थे, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मैंने बहुत पैसा घर पे लगा दिया और बिज़नेस के लिए भी पैसा नहीं बचा, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया। उसने कहा अब ये पढ़ें, आपका काम हो जाएगा, और जब तक काम नहीं होता आप हमें ऑर्डर दें, आप सेल करके हमें पैसे दे देना, लेकिन अपना काम जारी रखें, अल्लाह उनका भला करे, खुश रखे। और मैंने बस पढ़ा ही है ये एक आयत, एक दिन पढ़ा है, और मेरा काम ऐसे चल गया, बाज़ार में इस तरह दुकानें ना भरती होंगी, खुदा की कसम है। जैसे मेरा ऊपर बहुत बड़ा हॉल है जो मैंने अपना शोरूम बनाया, बाहर से ही उसके मेरे सीढ़ियाँ ऊपर आती थी, तो इतना रश होता था कि मुझसे बात नहीं की जाती, बारिश होती, पैसे मुझसे गिने नहीं जाते थे, सीढ़ियों पे उतरते उतरते मेरे से गिर जाते। आप यकीन करें, इतना है। आप इस पे मेहनत करें, आप पे अल्लाह के करम, जो भी काम हो, रिश्ते का काम है, कोई जॉब लेने का काम है, कोई बिज़नेस का काम है, कोई और मसला मसाइल है, जो भी है, आपके दिल की बात तो आपको ही पता है ना। ये 7वें सपारे के आखिरी रुकू में है, 103 नंबर आए। मुझे तो ज़बानी आती है ना, क्योंकि ये मैंने बहुत पढ़ी, और मैं वैसे भी इसको 129 दफ़ा खाली भी पढ़ती रहती हूँ। ला तुदरिकुल अबसार, ला नहीं, तुदरिकुल अबसार हमारी नज़र नहीं देख सकती अल्लाह को, वहुवा युदरिकुल अबसार, लेकिन उसकी निगाहें देख रही हैं। वहुवा लतीफुल खबीर, क्योंकि वह बाखबर भी है और बारीक बीन भी है। कितना प्यारा मतलब है। और दूसरी आयत वो है, अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ये अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ वहुवल कवियुल अज़ीज़, ये सूरह शूरा की आयत नंबर है 25 है कि 26 है, मैं आपको बताती हूँ। 25वें सपारे में सूरह शूरा की 119 नंबर आयत। मैं तो ये हमेशा भी फजर के वक्त एक तस्बीह या कम अज़ कम 72 टाइम, और मगरिब के वक्त भी मैं, मगरिब के बाद भी मैं एक तस्बीह या 72 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ती हूँ। तो अगर आपको रिस्क अल्लाह से ज़्यादा चाहिए तो आप ये पहली 2 आयतें पढ़ लें, अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ वहुवल कवियुल अज़ीज़। यूँ आप 2 आयतें पढ़ ली एक बंदे ने, जिसको सही पढ़ना आता हो। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफ़ुल खबीर। फिर थोड़ा सा सांस ले, अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही, अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ़ व करम और मेहरबानी फरमाता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ, और अपने बंदों को रिज़्क़ देता है खूब। अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ वहुवल कवियुल अज़ीज़, क्योंकि वो ताकतवर भी है और ज़बरदस्त भी है, वो जिसको चाहे दे, ये इसका मतलब है। तो ये 2 आयतें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर वो दोबारा या लतीफ़ शुरू कर, मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। जिन्होंने सुना है शायद उनको उस वक्त समझ नहीं आया, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं दोबारा बताऊँ। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि इस तरीके से करें। और फिर तीसरी आयत सूरह मुल्क की है, 14 नंबर आयत, अला यअलमु मन खलका वहुवल लतीफुल खबीर, क्या वो ना जाने जिसने खलक किया, हमें बनाया, एक वही तो है जो सब कुछ जानता है। अला यअलम मन खलका वहुवल लतीफुल खबीर, वो तो बहुत लतीफुल खबीर है। एक दफ़ा मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की थी, बहुत दिन रात, तो मुझे ख्वाब में आया था कि मेरी वो आयत जिसके आखिर में लतीफ़ुल खबीर हो, या शुरू में हो या दरमियान में हो, वो पढ़ा करो। तो मैं कहूँगी कि वो ये भी पढ़ ले, रुक के अगर वो 3-4 आयतें पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। वो ये 3 पढ़ ले, फिर या लतीफ़ो सारे शुरू कर ले, फिर वो 3 पढ़े। वो सिर्फ एक ने पढ़नी, अक्ल वाले ने, जो नीचे इनका मैना भी लिख ले, मतलब समझ के पढ़े,
वरना तो किताबें तो गधे के ऊपर भी लदी हुई होती हैं, तो गधे को पता होता है कि क्या लदा हुआ है। कानून की किताब है, पॉलिटिशियन की है, कोई क्या है, लॉ की है, उसको कोई पता? बस वो तो चल रहा है कि उसके पास किताबों का बोझ, वो नहीं फ़ायदा। मतलब लिख ले नीचे और उसको समझ के पढ़े जिस एक ने पढ़ना है। बाकियों ने तो या लतीफ़ो ही कहना है ना, मुश्किल क्या है। अच्छा, जो चौथी आयत है ना, ये 99 और 100 नंबर आयत है सूरा यूसुफ की, ठीक है। ये जो है इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये है जिसके ऊपर कोई परेशानी हो, तोहमत हो, कोई और मुश्किल हो, तो वो ये चौथी को मिला। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा इलैहि अब वही वकार दखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनी। ये ज़रा दो मिला के पढ़नी है, इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ रही ताकि बहुत लंबा रहा हो। 99 और 100 नंबर सूरा यूसुफ, ठीक है। ये पारा नंबर मेरा ख्याल 12 में आएगी, 12 में। तो आयत पढ़ने के बाद फिर तस्बीह पढ़े 129 बार। आप एक आयत पढ़ सकते हैं, दो पढ़ सकते हैं, तीन पढ़ सकते हैं, चारों भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। अच्छा, अब दरमियान में जो आयत पढ़ी जाती है इसकी तफसील ये है, अगर किसी को दुश्मनी की तरफ से तकलीफ़ और परेशानी हो तो वो हर तस्बीह के बाद आयत नंबर 1 को पढ़े। और दुश्मन ये नहीं है जो मारने वाला है, दुश्मन बीमारी भी है, दुश्मन तंगी भी है, दुश्मन बेरोज़गारी भी है, दुश्मन घर में नाइतफाकी भी है, दुश्मन जो है ना बदएतमादी भी है। ये मुझे ये आयत से इश्क है, मैंने इसको बड़े शौक़ से पढ़ा, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी इसको कोई ना छोड़े। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जो रोज़ी की तंगी और मुश्किल का शिकार हो वो 2 नंबर आयत पढ़े जो मैंने बताया, अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादी यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। सूरह शूरा की आयत मैंने आपको बता दी है। और 119 नंबर है। और जो किसी मर्तबे ओहदे या दर्जे का तलबगार हो तो आयत नंबर 3 पढ़े। कौन नहीं है ओहदे का, दर्जे का, इसलिए मैं कहती पहले 3 ज़रूर पढ़े। और जो चौथी है वो अगर जो कोई कैद व बंद की मुसीबत में मुब्तला हो, इस तरह का केस कोर्ट कचहरियों के चल रहे हैं, तो वो चौथे नंबर आयत पढ़े। मैंने पहले भी आपको बताया, जो जिसको ये मसला नहीं है वो 3 पहले पढ़ ले या दूसरी और तीसरी पढ़ ले, ये आप याद रखें। और जिसे चारों तरह की मुश्किल, जिसे चारों तरह की हो तो वो चारों पढ़ ले। और इस तरह और इसी तरह 2 या 3 आयात भी हस्बे ज़रूरत पढ़ सकते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस अमल के लिए इशा के बाद का वक्त बेहतरीन है। वज़ू अच्छी तरह अदाब व एहतराम से करें, अमल तवज्जो और मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की नीयत करें और तवाज़ो इख्तियार करें। याद रखें या लतीफ़ों का अक्सर अमल इसे बहुत फ़ायदा देगा। ये तो मैं गवाह हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपसे कुछ लेना देना तो नहीं है, मैं तो आपसे शुक्रिया की भी तालब नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि ज़रूर मेरे लिए दुआ करें, कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह अजर देगा और उसका अजर बेशुमार होगा, किसी बंदे से क्या लेना है। खुश रहें, अल्लाह आप लोगों के काम कर दे बस। तो ज़िंदगी में आप एक बार तो ये ज़रूर अमल करके देखें। हम क्यों एक बार करें, हम बार बार करें, तब ज़िंदगी का रुख आसानियों और रहमतों की तरफ हो जाता है। और अगर तौफीक मिले तो बार बार करें। अल्लाह ताला का जिक्र जितना किया जाए इतना मुफीद है। ये अमल करने के बाद अगर रोज़ाना 129 बार या लतीफ़ों को मामूल बना लें और आखिर में कोई आयत भी पढ़ लिया करें, कोई भी एक आयत या लतीफ़ों पढ़ने के बाद फिर आयत भी पढ़ लिया करें तो और भी अच्छा है। उसको भी 129 बार पढ़ लें तो आपके मतलब है कि वारे न्यारे। फिर आपने क्या करना है कि इसको अपने 2 शुक्राने के नफर पढ़ना। अल्लाह शुक्र है तूने मुझे तौफीक दी कि मैं इस अमल में से गुज़र गई या गुज़र गया, इसको कबूल करना और मेरा मकसद, ए रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरा मकसद अता फरमाना, आसानियाँ देना, ये अल्लाह से कहना। और फिर आपने 2 नफर शुक्राने के पढ़ने के बाद
आपने अपने 3 वितर पढ़ने हैं, 2 नफल पढ़ने हैं, और बाहर जाके फिर दुरूद शरीफ पढ़ के बाद दुआ करके आसमान पे फूंक मारना है, अल्लाह अपनी रहमत के वो दरवाजे ख़ास खोल दे हमारे लिए जो कभी नहीं खोले पहले, वो खोल दे, और हमें खुद तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता हमारे काम बना। आप देखना काम ऐसे बनेगा चुटकियों में, मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह। तो आप जब पढ़ें मुझे बताएं, और जो इस अमल में से गुजरे मुझे बताएं किसको कितने दिन के बाद फ़ायदा मिला है या अगले ही दिन मिल गया है। आपको ख्वाब ऐसे आने लग जाएंगे कि आपको गैब का इल्म होने लग जाए, इतना बड़ा अमल है। मेरे व्लॉग में एक या वहाबों का भी है और एक या मालिकल मुल्की या ज़ल जलाली वल इकराम का भी है। अगर आप कहीं वो देख के पढ़ लें ना, और या बदिय समावाती वल अर्द का भी। फिर मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं फिर बताएं, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। यही खिदमत खल्क है कि आप किसी को अच्छी तरह से समझाएं जब तक कि उसको समझ ना आ जाए। अल्लाह आपको अमल करने की तौफीक दे, पढ़ने की तौफीक दे, आपकी दुआओं को कबूल करे। आज आपको बता के मेरा भी दोबारा शौक़ ज़िंदा हो गया है कि मैं भी मैंने पिंडी से दोबारा निकलना है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे 1-2 को बिठाऊँ कि चलो हम पढ़ते हैं। अल्लाह बड़ा ही अजीम है, अल्लाह बड़ा ही रहमत के दरवाजे खोलने वाला है। तो ये जो अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और जो मैंने अगली बताई है सूरह मुल्क की जिसके आखिर में लतीफ़ व ख़बीर, ऐसी आयतें हैं 4-5 कुरान में जी। इनके पढ़ने से दुआ बहुत। और फिर मैंने ख्वाब देखा था कि मैं तवाफ़ कर रही हूँ और मेरी बहन का बेटा छोटा सा, उसका नाम जवाद है, तो वो मेरी गोदी उठाया हुआ, एक टांग इधर एक इधर करके उठाया हुआ, हालांकि मैंने बच्चा ऐसे कभी नहीं उठाया। और दरवाज़ा खुल गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता होती हुई खाना काबा के अंदर चली गई, और वहाँ मैं दीवारों पे अल्लाह की तरफ से क्या लिखा हुआ है, ये आयतें जो लतीफ़ व ख़बीर से शुरू हैं या ख़त्म, तो मैंने पढ़ी है। तो वो चार लिखी हुई थी जो मुझे दिखाई गई रात को, और मैं इतनी नेक या इतनी कोई बुजुर्ग नहीं थी, और ये तब की बात है, अभी मैं उस वक्त यंग थी। मैं ये घर लेना चाह रही थी, ये जगह इस घर की, इसके लिए मैं दुआ मांग रही थी कि वो प्लॉट बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी के ऊपर है, बहुत बड़ा भी है, मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं। तो मैं अल्लाह की रिक्वेस्ट कर रही थी कि दे देना, तू दे दे, और ऐसे बना भी दे कि जैसे मस्जिद बन जाती है, जैसे कोई और जगह तेरे नाम वाली बन जाती है जो फी सबीलिल्लाह काम हुआ। तो आप यकीन करें, ये 4-5 दिन के बाद अल्लाह ने ये मुझे दे दिया था, जो कि ना पैसे थे, ना मैंने किससे मांगे, ना किसी ने मुझे दिए, लेकिन अल्लाह ने मेरा बंदोबस्त ऐसे किया कि मुझे दे दी, बस दे दिए बारिश की तरह। और मैंने किसी से नहीं लिए, मैंने हमेशा बताया, ना किसी बाप से, ना भाई से, ना खामन से, ना बच्चे तो थे ही छोटे, किसी से नहीं मैंने लिए, ना बैंक से, ना हाउस बिल्डिंग से, उसने दिए उसने। लेकिन मैं हर रोज़ सजदे में रोती थी, और मेरे यहाँ पे ना ऐसे बन गए थे खरिंडर से, ज़ख्मी लाल हो के ना, तो स्किन मेरे के ऊपर बन जाते थे रो रो के। उस वक्त दुपट्टे साथ आते नहीं थे, लॉन के दुपट्टे, तो हम लोग शिफॉन जॉर्जेट इस तरह के लेते थे, वो फेरने। लेकिन 1.5 साल में ये घर बन गया कि अभी भी लोग कई देखने आते हैं कि हैं 1.5 साल पहले बनाया था। अल्लाह ने मुझे कहा, ये घर तुझे अल्लाह ने तोहफे में दिया है, ये घर अल्लाह ने तोहफे में दिया है। जो मेरे घर आता है ना, वो कहता है तुम्हारे घर में क्या चीज़ है। मैंने कहा पता नहीं, हम हैं ऐबदार से लोग, तो वो कहते हैं ऐसे लगता है भरा भरा है, कुछ अल्लाह की रहमतें नेमतें फरिश्ते कुछ फिर रहे हैं, और बरकत है। तो मैंने कहा मुझे भी इसमें बड़ी सुकून और ठंडक है। 1.5 साल में बन गया, और मैंने दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ लगाई और बनाई, और हर शौक़ पूरा किया अपने अल्लाह की रहमत से। वो क्या पंजाबी में कहते हैं, पल्ले ना तेला ते कर दी मेला मेला। मेरे ठेकेदार ने मेरे मियाँ को कहा कि आपकी बेगम जो है ना, इसके ख्यालात बड़े हाई फाई हैं, और ये चीज़ें भी बड़ी ऊपर से मांगती है, और पैसे इसके पास इतने होंगे, कहाँ से इतने लगाएगी। इन्होंने कहा मुझे क्या पता, मुझसे तो कभी नहीं मांगे।
اللہ سے بات چیت کرتی رہتی ہے، خود ہی کچھ کر لیتی، اور اللہ نے کر دیا۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو لوہے سے زیادہ۔ اللہ جب چاہتا ہے لوہا مضبوط بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو داؤد علیہ السلام کے لیے اس کو چشمہ بنا کے بہا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکڑی دی ہے، کشتی آپ نے خود بنانی ہے۔ اللہ نے آپ کو لوہا دیا ہے، مشینیں آپ نے خود بنانی ہے۔ آپ نے بیج ڈالنا ہے تو فصل اگنی ہے، پھل اگنا ہے، پھول اگنا ہے۔ بیٹھے اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، ایسے نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی، میں نے ٹکریں ماری، محنت بھی کی، میں کام تو اپنا کر ہی رہی تھی، اور اللہ نے میرے کام میں ایسے برکت اور بارش کی کہ میرے 4 پرس بڑے بڑے بھر جاتے تھے، اور جب گھر تھا تو اللہ کی طرف سے نوٹ آ رہے تھے۔ گھر میں بیٹھے، میں نے باہر نہیں گیا، باہر میں صرف ایگزیبیشن کرنے جاتی تھی 1 مہینے کے بعد، کسی اور ملک میں بھی اور کسی اور شہر میں بھی، جہاں بھی کہیں ایک جگہ، پھر وہ ساری چیزیں بک جاتی تھی، پھر آ کے شروع ہو جاتے تھے، پھر بناتے تھے، اور گھر سے ساتھ ساتھ بکتی رہتی تھی، پھر آرڈر دیتے تھے، پھر ایگزیبیشن کا۔ صرف 1.5 سال میں میرا گھر بنا، جس کو تھوڑا بہت آپ دیکھتے رہتے ہیں میری ویلاگز۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے، اللہ جس کی جو دعا ہے قبول کرے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بہت ہی دے گا۔ آپ بھروسہ کریں اور اس کی رسی سے لٹک جائیں جو بڑی مضبوط ہے، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، سب سے مضبوط ساتھ ہے، اور کسی پہ اعتبار نہ کریں۔ کبھی کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا، کبھی کوئی کچھ نہیں دے سکتا، صرف وہ دیتا اللہ۔ اللہ وہ برتن توڑ دے جو کسی اور پہ آس لگائے۔ مجھے اللہ نے کہا تھا یہ تجھے میں نے تحفہ دیا ہے، انعام نہیں دیا، تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میں تمہیں انعام دوں۔ یہ بھی میرے تھپڑ مارا تھا اللہ نے خواب میں کسی نے، کہ انعام کیوں کہا ہے، اللہ نے انعام دیا، یہ انعام نہیں ملا، یہ تحفہ ملا۔ اور اللہ نے کہا باہر ماشاء اللہ لگاؤ گھر کے باہر، اور جب سیڑھیاں چڑھو تو تمہیں کوئی زیادہ خوبصورت سیڑھیاں نہ لگے، اس پہ کوئی اور ڈیکوریشن کی چیز نہیں لگانی، بس اللہ اکبر لکھو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ اور جب اپنے گھر کے انٹر ہو تو اپنے روم کے بعد جہاں دیوار آتی ہے ادھر مڑنے والی کچن کی طرف، اور ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلا کلمہ لگا، اور مجھے جیسے حکم آیا تھا میں نے ویسے ہی کر دیا، اور وہ آج تک ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ کوئی میرے بچے نئی چیز لگا سکتے ہیں انہی الفاظ کی بنا کے، لیکن ابھی تک تو ہر چیز ماشاءاللہ چماچم ہے۔ تحفہ اس کا ہے نا، خراب کیسے ہو۔ پڑھ کے اپنے وطن کے لیے دعا کریں، ان خبیثوں سے جان چھڑانے کے لیے دعا کریں، عمران خان کے لیے آسانیوں کی دعا کریں۔ اتنے کتے 13-14 پارٹیوں کے ایک کے پیچھے بھونکتے رہتے ہیں سارا دن، اور اب تو انہوں نے چینل بھی پتہ نہیں ڈرا کے چپ کرا لیے، اب تو وہ بھی نہیں صحیح خبر دیتے، اب تو میرا ARY پہ بھی اعتبار ہٹ گیا، بس ابھی میرا بول پہ رہ گیا بس، یا پھر صابر شاکر، یا پھر عمران ریاض، اور جو ایک دو اسی طرح کے ہیں، عارف حمید بھٹی وہ اچھا ہے، اور یا مقبول، یا وہ ایاز میر، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور بھی کوئی ایک آدھ نام ہے، اب ارشد شریف تو آج کل کر نہیں رہا، تو وہ تجزیہ کرتا تھا، وہ ویسے بھی ویلاگ تو کرتا تھا، بس میں یہ سنتی ہوں، میں ٹی وی اب لگاتی نہیں ہوں کہ لعنت بھیجو سارے چینل، کیوں ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے جب یہ جھوٹے بن گئے۔ تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میرے والدین، ننیحال، ددیحال، سسرال، عزیز رشتہ دار، میرے نبی کی ساری امت جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنا، اور اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کی دعا کرنا۔ اللہ ہمارے ملک کی جو ہے نا فوج، اس کو مضبوط ترین کرے، اپنے پیروں پہ کھڑے کرے، یہ کسی کے خوف سے نہ ڈرے، نہ باہر کے ملکوں سے تو نہ اندر کی پارٹیوں سے، بس یہ مضبوط ہو، اور اپنے جو اچھا نیک سیاستدان ہو، پولیٹیشین ہو، اس کے ساتھ مل کے چلے۔ اللہ خیر رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اب میں نے اسلام آباد گھر کے لیے نکلنا ہے، وہاں بھی کام ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا۔